Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope all of you will be fine and enjoying good health. So it's our second lecture in fifth week of the subject with the course code of PHY 132, electricity and magnetism. In the last lecture, we were discussing the Gauss's law and its applications. So I just have a quick review of the previous lecture and what the article we have discussed so far, and then we'll conclude our section of electrostatics by solving a sample problem and then just putting down the overall summary of this section. So first I would just like to write down the overview of the previous lecture. In previous lecture we actually discussed the Gauss's law, and primarily we derived Coulomb's law from Gauss's law. So derivation of Coulomb's law. So we discussed that by applying the fundamental equation of Gauss's law, which was equal to closed integral of E dot dA, that is equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. So in this situation, if the surface which is considered to be spherical, then the area of sphere will be equal to 4 pi r square. And mind it that we are considering the maximum flux when E and dA, they are in the same direction. So, and that in that situation we derived that electric field for that spherical surface was equal to 1 over 4 pi epsilon naught q enclosed over r square. So that was actually the electric field being generated by the point charge, and is just like the same value of electric field which was derived using the Coulomb's law of point charges. So after that we discussed the electric field, the you can say that charged electric field on a charged isolated conductor, in which we discussed that the total charge was actually concentrated at the outer surface of the conductor rather than the inner side. So charged isolated conductor, again I emphasize on the word of isolated, that the conductor is not being connected to any circuit, you can say that. So it's an isolated conductor and the charge is separate on this conductor, and we came up with the idea that why the charge is actually distributed over the outer surface is due to the fact that the charge redistributes itself. So I say that it is redistribution of charge. So if the charge redistributes itself, then accordingly electrostatic force of repulsion comes into play. So in that situation they repel each other, and accordingly they will move to the outer edge in the on the surface of the conductor. So if we consider that the charge net charge is not zero within the conductor, then definitely there will be an electric field and electric flux, and that electric field or electric flux will move the charge particles within the conductor, and then accordingly we will get a current. So normally we don't get the current of in an isolated conductor, so we can say that it's actually the proof that the total charge is being distributed over the surface of the conductor. And that situation, if
the charge is being you can say that distributed over the surface of the conductor, then the charge will become in electrostatic equilibrium. So the sum of the forces on the charged object will be equal to 0. That the situation will actually be achieved, that is called as the electrostatic equilibrium. Okay, so the second situation was that in which a cavity is being formed within the conductor. So in that cavity, what we can conclude that the net electric field lines passing through the cavity will be equal to 0. So means that the sum of field lines entering into the cavity will be equal to the sum of the electric field lines leaving the cavity. So in that situation we can say that the net electric field within the cavity will also be equal to 0, as there is no charge placed within the cavity. So accordingly we can say that again there will be no net electric field if the object is actually being placed in the cavity. So in under certain circumstances, again if a conductor is there and the cavity is being formed, then again the total charge will be distributed at the outer surface, and there will be no net charge within the boundary of the cavity of the objects. So I can just write down over here the conductor with the cavity with a cavity will have net electric field E is equal to 0 inside इट. अगेन मतलब अगर कैविटी भी इसमें मौजूद है तो कैविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा. So next we move on to the this one was actually concerned with the internal electric field of a conductor. So that was actually inside the conductor, the electric field which was inside the conductor. I just say that E inside the conductor. And the second thing that we discussed was electric field outside the conductor. So electric field outside the conductor. So if we consider the electric field outside the conductor, then we discussed first the electric field generated due to a conducting sheet. So in that conducting sheet, the value of electric field was equal to sigma over epsilon naught. That was a conducting sheet. So what was the reason? That the electric field being generated at this, we considered the Gaussian surface in the form of a cylinder, and one edge of the cylinder was within the surface of the sheet and the other edge was outside the surface. So the edge which was inside the surface will have a net charge 0, as we have previously discussed that in a conductor the electric total charge is being distributed at the surface. So in that situation only the one surface was concerned related to the electric field with the surface area which is having the same direction as that of the surface area, electric field. And like over here we discussed that this side which is within the surface, that is having electric field 0, and then these two edges they have a surface area perpendicular to the direction of electric field. So again the electric field over here is also 0, but only this surface area is having the same direction as that of electric field, and accordingly the electric flux can be calculated at this surface area. So that was equal to sigma over epsilon naught. So the same electric field was actually estimated for the non-conducting sheet, that was equal to sigma over 2 epsilon naught.
So this was actually non-conducting, because now in the electric field of one surface and the other surface, both they can be calculated, and then accordingly the electric field was estimated. So next we move on to the value of electric field which was generated due to a due to two conducting sheets. So in these two conducting sheets, we estimated the value of electric field at the left side between the sheets and at the right side, and we came up with the idea that the electric field of two oppositely charged sheets was maximum at the center of the sheets, and it was you can say that zero when we move out the edges. So I can write over here the electric field was uniform and maximum at the center. It's just like in between the oppositely charged sheets. Okay, and at the outer ends it was actually 0, and E was equal to 0 at outer ends of the sheets, and at the edges we don't consider it. The field was E was equal to non-uniform. So wherever the field is non-uniform, we will not be able to actually apply the Gauss's law, and then because in that situation we need to find out the value of electric field at individual points, and then it will make our calculations complicated. So this was the distribution in which we estimated the value of electric field during the conducting charges, and then we move on to the cylindrical symmetry. We apply the Gauss's law to the cylindrical symmetry, and in cylindrical symmetry we estimated the value, we consider the sheet, the line of charge with the positively charged line, and we estimated the Gaussian surface in the form of a cylinder, and we find out the value of electric field again using the basic concept of Gauss's law, using the equation E dot d is equal to q enclosed over epsilon naught. So in that situation, and as our surface is in the form of a cylinder, so the surface area of the cylinder will be considered, and then accordingly its value was equal to, which was calculated to be equal to E is equal to lambda over 2 pi epsilon naught r, where lambda is the charge density. So whatever we are using the symmetrical object, we have to consider the charge density instead of charge. So if it is it's a line, then it will be linear charge density. If it is a surface, then it will be surface charge density. Then if it is three-dimensional object, then the volume charge density will be considered. So for the cylindrical symmetry, we consider the linear charge density. So again, this formula was estimated by applying the basic you can say that the steps, that first we have to consider the Gaussian surface and see that the surface area and the direction of electric field is parallel. We have to consider the you can say that the electric field, the component in which the electric field and surface area, they are parallel to each other, which is giving us the maximum value. So the surfaces which are perpendicular to the electric field, then accordingly that will be equal to 0, and no electric flux will be actually considered from those surfaces. So the third thing is we will replace the we find out the value of electric field and then replace it, the charge, with the charge density. Can be linear charge density, or either it can be a surface charge density or volume charge density, and then simplify it to get our desired relation of that particular symmetry.
right? So the third one was last article which we discussed previously, was the spherical symmetry. So in spherical symmetry, we consider the you can see that the object to be a combination of shells. So in that situation, we derive the relation of the shell, outer surface of the shell and inner surface of the shell. In that situation, we discussed that this one is positively charged object, and if we consider the Gaussian surface inside the shell, then there will be no net electric field inside the shell, as the net electric charge we already have discussed that inside the conductor, inside the shell, will in charge distribution will be zero, because the uniform charge distribution will exert a uniform electrostatic force. Then accordingly the object will not experience a net electric field within the uniformly distributed charge distribution, जस्ट लाइक ए शेल. अगर इसमें शेल जो है ना मैं बना दूं तो उसके ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना एक्ट करेगी. और जैसे ही ये शेल जो है ना वो बाहर मैं बना दूं, तो फॉर द आउटर शेल इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज. सो अकॉर्डिंगली इट विल एक्चुअली रिजल्ट ए इलेक्ट्रिक फील्ड which will be like a point charge. So I just write down the main point over here. Inside the charge distribution, minded that we are considered about the consideration of Gaussian surface, right? So ये सारी की सारी जो डिस्कशन हो रही है, ये Gaussian surface की जो है ना वो बात हो रही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं. सो इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, वो यूनिफॉर्मली लगा रहे हैं. जितनी जो है ना वो राइट साइड से लग रही है फोर्स, उतनी ही लेफ्ट साइड से लग रही है, जितनी अपवर्ड उतनी ही डाउनवर्ड. तो नेट वैल्यू जो है ना हमारे पास जीरो आ जाएगी. तो जब हम लोग इन आउटसाइड की बात करेंगे, तो आउटसाइड के लिए जो ना वो चार्ज हम कहेंगे कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर. चार्ज इज कंसीडर्ड to be concentrated at the center. सो इसका बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जिस तरह जो है ना वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज की तरह जो है बिहेव करता है. सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज जस्ट लाइक द सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, दैट इज 1/4πε0 Q/r². सो ये जो है ना वो रिलेशन हमने स्फेरिकल सिमेट्री के लिए जो है ना वो डिस्कस किया था. और उसके बाद हम अगर जो है ना वो ये कंडक्टिंग शीट का था, ठीक है. और अगर वही जो है ना वो चार्ज हम लोग जो है ना वो नॉन कंडक्टिंग शीट में स्प्रे कर दें, ये सारे का सारा जो था ना वो इसको हम कह देते हैं कि ये जो हमने कंसिडर किया है इज जस्ट लाइक द सिचुएशन ऑफ ए कंडक्टिंग शीट, राइट. तो अगर जो है ना वो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो करते हैं जिसमें सारे सरफेस के ऊपर जो है ना वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो जाएगी. और वो जो है ना वो किस तरह होगी कि उसके जो है ना वो सर्कल के अंदर यहाँ पे अगर हमारा जो है ना सारे का सारा चार्ज जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस सिचुएशन में अगर मैं स्मॉलर सर्कल कंसीडर करता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं स्मॉलर सर्कल जो है ना वो कंसीडर कर लेता हूँ, तो उस स्मॉलर सर्कल के अंदर जितना भी चार्ज ऑब्जेक्ट आएंगे, ये सारे के सारे जो है ना वो इसका चार्ज चूँकि इनक्लोज्ड है, तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड की वजह से आ जाएगा. लेकिन अगर ये कंडक्टर होता तो ये जहाँ पे चूँकि सारे का सारा चार्ज जो है वो आउटसाइड द सरफेस के ऊपर होता, तो इनसाइड चार्ज नहीं होना था. तो इस वजह से कंडक्टर के केस में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है. लेकिन अगर हम लोगों ने ना वो नॉन कंडक्टिंग शीट ली हुई है और इसके अंदर चार्ज मौजूद है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो आएगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डैश ओवर r². तो
तो ये नॉन कंडक्टिंग का जो है ना वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम लोग कह सकते हैं। तो जब नॉन कंडक्टिंग में क्यू डैश है तो क्यू डैश का मतलब है ये चार्ज जो है ना वो इसके अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो क्यू डैश जो इनक्लोज चार्ज है ये हम लोग चूंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती तो हम लोग इसको जो ना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द टोटल चार्ज, ताकि हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर सकें। और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द टोटल चार्ज वो हम लोग रेशो से लेते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ दैट शेल इज विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ओवर द टोटल वॉल्यूम। ये लास्ट में मैंने जो है एग्जांपल दी थी आपको लेस के जो है ना वो उसके पैकेट्स के हवाले से। तो ये वैल्यू जो है ना चूँकि अननोन है तो इसको नॉन पैरामीटर्स में चेंज करने के लिए हम लोग इसकी वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। और ये क्यू डैश की वैल्यू जो कैलकुलेट की गई थी दैट वाज इक्वल टू क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू दैट वाज टोटल चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू आर। तो ये वैल्यू जो है ये क्यू डैश की कैलकुलेट करके तो इसमें जो है ना वो पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर्स। तो ये जो है ना वो ओवरऑल इसकी जो है ना वो समरी थी जो हमने गॉसेस लॉ के केस में जो है ना वो ये पढ़ी हुई हैं। तो अब हम लोग जो है ना एक सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे। उस सैम्पल प्रॉब्लम के जो है ना वो जस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि किस तरह हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है, ये जो पेज नंबर है दैट इज़ 618, ये मैं लिख लेता हूँ। इसमें जो है ना वो हमें दिया गया है कि ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में हमें 2 कंडक्टिंग शीट्स दी गई हैं जिनके जो है ना ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे उसने हमें कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ जो लेफ्ट साइड ऑफ द शीट होगी, राइट साइड ऑफ द शीट और विद इन द शीट्स। हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 3 पॉइंट्स के ऊपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। तो अगर जो है ना वो मैं यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी गई है वो डेंसिटी की दी गई है कि पॉजिटिव शीट के ऊपर जो डेंसिटी वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 6.8 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ गिवन टू बी 4.3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो हम लोगों ने पहले फाइंड करना है जो कंडक्टिंग शीट के लेफ्ट साइड पे है। तो ई एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ई बी फॉर बिटवीन द शीट्स हमने फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टुवर्ड्स द राइट साइड हमने को फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है ना वो अपने आर्टिकल को थोड़ा सा रिव्यू करें, उसमें जाएं पीछे, तो ये मैं जो है ना वो आपको डायग्राम ये बता देता हूँ कि ये जो डायग्राम बी है इसमें देखें कि हमारे पास जो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ अवे फ्रॉम द शीट जो लेफ्ट साइड है, और जो नेगेटिव प्लेट का फील्ड है ई माइनस ये टुवर्ड्स द राइट साइड है। ये दोनों जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती तो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों चूँकि जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इनकी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है ना वो मुख्तलिफ हैं तो इस वजह से जो लेफ्ट साइड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ ई प्लस और ई माइनस, ये दोनों का आपस में डिफरेंस, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग जब लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड फॉर द पॉजिटिव प्लेट माइनस द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू नेगेटिव शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंडक्टिंग शीट का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव प्लेट विल बी इक्वल टू सिग्मा प्लस ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा माइनस
ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये सॉरी ये नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बजाय आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये हमेशा आपने जो है ना वो याद रखना है कि जब भी हमारे पास ये शीट जो दी गई हैं, अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट्स हैं तो नॉन कंडक्टिंग शीट्स में जो है ना वो सिग्मा वो 2 एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला आएगा, और जब कंडक्टिंग शीट्स की बात आएगी तो उस सिचुएशन में ये फार्मूला जो है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू जो हमें नॉन है, एप्सिलॉन नॉट ये स्टैंडर्ड वैल्यू है विच इज हैविंग ए वैल्यू ऑफ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जस्ट वैल्यूज जो है ना वो इसकी यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट। सो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब हम लोग अगर राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो फाइंड करना चाहें, तो राइट साइड के ऊपर अगर मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ, सो ये राइट साइड में अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो टुवर्ड्स राइट साइड ही है, और नेगेटिव की वजह से जो नेगेटिव का फील्ड है ये हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा राइट साइड में भी। तो जिस तरह हमने लेफ़्ट साइड की वैल्यू फाइंड की है, उसी तरह हम लोग राइट साइड की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करेंगे, और वो इसी तरह अगर ये भी डिफरेंस है तो ये भी डिफरेंस के साथ ये तकरीबन जो है ना वो सेम वैल्यू आएगी हमारे पास। लेकिन अगर दरमियान में देखा जाए ये दरमियान की वैल्यू, तो दरमियान में ई प्लस और ई माइनस दोनों जो है ना वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पे एड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू पॉजिटिव शीट प्लस द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू नेगेटिव शीट। तो ये वैल्यू जो है ना जब हम लोग इसको जो है ना वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यूज़ करते हुए वैल्यूज पुट करेंगे और इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6.3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट। सो ये चीज़ जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी इन बिटवीन दी प्लेट्स। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ आप देखें तो ये जो बिटवीन दी प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये ज़्यादा है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो राइट साइड का चूँकि वो भी डिफरेंस था, तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास जो वैल्यू है वो तकरीबन यही आएगी, चूँकि मैग्नीट्यूड हमारे ई प्लस और ई माइनस की जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली सेम है, सेम वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो वही वैल्यू लेफ्ट साइड की और राइट साइड की पुट करेंगे। तो ये जो है ना वो ई आर की वैल्यू में मैं वो लिख देता हूँ, फॉर ई आर इज जस्ट लाइक द सेम एज दैट ऑफ ई एल, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चूँकि आ रही हैं, तो इस वजह से वो वैल्यू जो है वो वही होगी जो हमारे पास ई लेफ़्ट साइड की है। सो मैं इसको ई एल के बराबर जो है ना वो पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो अगर आप देखें तो हम लोगों ने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई थी, और उसमें हमें ये नहीं बताया गया था कि ये जो इसके ऊपर चार्ज है वो कितना है, बल्कि जो हमें बात बताई गई थी वो थी चार्ज डेंसिटी के हवाले से। तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और अगर सरफेस की बात की जाए तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ना वो अपने जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैलकुलेट करते हैं। और अब ये देखें ये चार्ज पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर था शीट्स के ऊपर, तो ये एक्सटेंडेड चार्ज की जो है ना वो कंडीशन आ गई। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये हमारे पास शीट है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी शीट जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज शीट है। तो नेगेटिवली चार्ज जो शीट होगी, ज़ाहिर बात है ये जो है ना वो इसके ऊपर एक्सटेंडेड चार्ज आएगा, ये पॉइंट चार्ज नहीं है।
अगर तो हम लोग कूलम्स लॉ लगाते तो सिर्फ इंडिविजुअल जो है ना वो नेगेटिव और इंडिविजुअल पॉजिटिव का जो है ना इस तरह का रिलेशन जो है ना हमने फाइंड करना था, जैसे ये और ये आपस में, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ चार्जेस जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स हमने जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करनी थी, और उसके बाद नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमें जो है ना तमाम फोर्सेस को उसका वेक्टर सम लेना था। तो गॉसेस लॉ ने क्या किया, हमारे लिए ये आसानी पैदा कर दी कि हम लोग बजाय इसके कि इंडिविजुअल चार्जेस कंसीडर करें, हम उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो है ना वो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज चाहिए होती हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये वैल्यूज़ लेके हम उसके अकॉर्डिंगली बेसिक फार्मूला में पुट करके तो हम सारे के सारे जो है ना इलेक्ट्रिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो गॉसेस लॉ ने जो है ना हमें एक सिंप्लीफाइड वे दिया कि जिससे हम लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की वो फाइंड कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जनरेट होती है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरे का पूरा सेक्शन है, इसको अगर हम लोग समराइज़ करें तो इसमें प्राइमरली हम लोगों ने ये जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है वो ये की है कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मौजूद हो किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, और वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक इंटरेक्शन रखता है अगर वो कोई टेस्ट चार्ज उसके करीब लेके आया जाए। तो इस जो ना पूरे सेक्शन में प्राइमरली जो क्वांटिफाई करने के लिए या जो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो लॉज यूज़ करते हैं वो बेसिक दो लॉज हैं, जिसमें एक कूलम्स लॉ है और एक गॉसेस लॉ है। कूलम्स लॉ जो ना वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लोकलाइज्ड पॉइंट चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन बता के तो इसकी जो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमें बता देता है कि अगर दोनों एक दूसरे के स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं और वो पॉइंट चार्जेस हैं तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो कितनी होती है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कूलम्स लॉ यूज़ होता है। लेकिन चूंकि वो लोकलाइज पॉइंट थे और हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती हैं, पूरे के पूरे सरफेसेस चार्ज होते हैं, तो सरफेसेस जब चार्ज होते हैं तो चार्जेस बहुत करीब करीब पड़े होते हैं, और उस सिचुएशन में ये मुमकिन नहीं रहता कि इसको हम लोग पॉइंट चार्ज जो है ना वो कंसीडर करें या पॉइंट चार्ज की वो कंडीशन लगा सकें जो हमारे पास कूलम्स लॉ ने लगाई थी पॉइंट चार्ज की। तो हम क्या करते हैं फिर उसके लिए हमें जो है ना वो अपने लॉ को मॉडिफाई करना पड़ता है, कंडीशंस को मॉडिफाई करना पड़ता है, जिसको मॉडिफाई किया था गॉसेस लॉ ने, जिसने एक्सटेंडेड चार्जेस लिए थे। मैं फिर यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि उसने एक्सटेंडेड चार्जेस लिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ली थी, इंडिविजुअल चार्जेस नहीं लिए थे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो है ना उसको कंसिडर करते हुए उसने एक इक्वेशन फॉर्मुलेट की, और वो इक्वेशन जो है ना प्राइमरीली यूज होती है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट और उसका इंटरेक्शन जो है ना वो स्टडी करने के लिए कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, उस सब को जो है ना हम लोग उस इक्वेशन से जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। और उसमें उसने कंडीशन लगा दी थी कि जब भी आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है तो उसमें एक सरफेस को जो है ना वो आपने क्लोज सरफेस की फॉर्म में लेना है। और नॉर्मली चूँकि क्लोज सरफेसेस जो होते हैं वो हमारे पास जो है ना वो हर सरफेस की हमें डायमेंशन सिमेट्रीज वगैरह या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना वो उसको हमारे डिफाइन नहीं करते, तो हम लोग वही फंक्शन वही शेप्स लेते हैं, वही सरफेसेस लेते हैं, या वही जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं, और उन शेप्स के सरफेस एरियाज, उन शेप्स के वॉल्यूम्स वो सारे हमें नोन होते हैं, और हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना वो उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो पैरामीटर्स, वो शेप्स, वो ऑब्जेक्ट्स लेके हम लोग क्या करते हैं फिर उनके अकॉर्डिंगली उनका सरफेस एरिया फाइंड करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो सेकंड एंड पॉइंट है वो ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस हैं ये हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स में आएंगी जिन ऑब्जेक्ट्स का जो है ना वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू जो ना हम इस फार्मूला से
कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिर जो है ना वो इंडिविजुअल पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सम अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग जो ये इक्वेशन जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे गॉसेस लॉ की, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ना वो इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं और वी आर ओनली कंसीडरिंग द सरफेस एरिया। इफ इट इज़ a circle, then the surface area will be different, and if it is a cylinder and if it is a sphere, if it's a line, then accordingly the surface area will be different, but the electric field being generated at that particular surface by the electric charge distributions must remain the यूनिफॉर्म और रिमेन्स सेम। सो इस सिचुएशन में अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पे जो हम लोग गॉसेस लॉ जो है ना वो सारे सरफेस के ऊपर हम लोग उसकी कंडीशन जो है ना वो नहीं लगा सकते। तो ये जो है ना वो था हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सेक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें चार्जेस जो है ना वो हम लोगों ने डिस्कस किया है एट रेस्ट के ऊपर। तो जब भी एट रेस्ट की बात आएगी तो हमेशा इन दो लॉज को हम लोग यूटिलाइज करते हुए अपने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है ना वो उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना ये चैप्टर नंबर 23 था आपका, जो यहाँ पे जो है ना वो इस आर्टिकल के साथ जो है ना वो सैम्पल प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो एंड हो गया है। इसमें जो है ना वो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ना वो उससे रिलेटेड कर लें। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख देता हूँ जो न्यूमेरिकल्स जो है ना वो आपने करने हैं। ये न्यूमेरिकल्स उसी चैप्टर के हैं जो चैप्टर आपको ऑलरेडी जो है ना वो मैंने रिसोर्स में शेयर कर दिया हुआ है। ये नंबर जो है ना वो उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 आपने करना है, दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसमें सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 6 है, that is with respect to the electric field being generated due to the conducting sheets, related with the conducting sheets। इसमें सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 9 है, that is concerned with the charge distribution of a sphere or spherical distribution of charge। क्वेश्चन नंबर 10 भी है, that is again related with the question number 9। ये जो है ना उसकी सिचुएशंस को जो है ना वो रैंक करने के लिए, बताने के लिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ये जो है ना वो आप कर सकते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये सैम्पल प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर जो है ना वो सेक्शन 23.3 का है। ये सेक्शन 23.3 और इसमें जो है ना वो हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2, ये 2 है और ये पेज नंबर 622 के ऊपर है। पेज नंबर 622 के ऊपर ये सैम्पल प्रॉब्लम नंबर SSM लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 है। सेकेंड वाला जो है ना वो आप सैम्पल प्रॉब्लम जो है ना वो ये इसमें कर सकते हैं। इसमें अगेन जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है ना वो आपका है। और आई थिंक ये जो है ना वो तमाम सैम्पल प्रॉब्लम, ये बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है ना वो थोड़ा सा एड्रेस कर देंगे। तो ये सैम्पल प्रॉब्लम्स जो है ना ये आपने जो है ना उनको सॉल्व करना है। और इसके अकॉर्डिंग अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो वो आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। और
ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हमारे जो है ना वो कोर्स कंटेंट्स कोर्स आउटलाइन का हिस्सा हैं एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ द असेसमेंट. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो इन आर्टिकल से रिलेटेड या इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो हम लोग अपनी शेड्यूल जूम मीटिंग में जो है ना इसको डिस्कस कर सकते हैं. सो फॉर नाउ टेक केयर, इट्स ऑल ओवर. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. Thank you very much. Okay, Allah Hafiz.